بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں میں، اور میرے ساتھ موجود ہے نسیم صاحب. اور ابھی ہمیں ایک اور پرسنالٹی نے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی شخص نے، بلکہ ایک شخصیت نے جوائن کیا ہے جن کے سوال ہر ایک کو چبھتے ہیں، لیکن وہ سوال کرنا نہیں چھوڑتے. آج ان سے ہم کریں گے سوال. ہمارے ساتھ موجود ہیں پمو بھائی. السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مبارک آپ کو، عید مبارک. مبارک. پمو بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیشہ سوال کرتے ہیں آپ سے سوال ہوں گے، کچھ دل میں کھٹکا سا ہے؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. عامر شیخ صاحب جو ہے انہوں نے اچانک بلا لیا، ورنہ میں بھی شلوار قمیض پہن کے ہی آتا. پہلا سوال میں کر لیتی ہوں آپ سے بنا ٹائم ویسٹ کے. میں آپ سے، آپ نے کتنی عیدی دی یہاں سٹاف میں اور کتنی آپ کو وصول ہوئی؟ بھائی دیکھیں، فرسٹ ڈے میں آیا تھا تو فرسٹ ڈے میں جن سے ملاقات ہوئی ان کو عیدی دے دی. عید فرسٹ ڈے ختم، یہ تو آئی تھی. اب ان سے ملاقات ان سے نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب جو رہ گئے فرسٹ ڈے عید ہوتی ہے، فرسٹ ڈے میں عیدی ملتی ہے. اس کے بعد اب یہ تو عید ختم ہونے والی ہے. فرسٹ ڈے کے بعد منظر بھائی پس منظر میں چلے جاتے ہیں. بتا دوں آپ کو عیدی کے معاملے میں منظر بھائی سے یہ سوال ہو نا عید کا، جس طرح یہ سیاستدانوں کو گھیرتے ہیں، تو آپ کو خدیجہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ پمو بھائی آپ نے اب تک جتنی عیدی لی اس کا آڈٹ کرایا آپ نے؟ وصولی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کتنی عیدی وہ وصول پیسے کی کہاں سے آئے جو آپ نے عیدی کی مد میں دی؟ یا پھر آج کل جو حکومت فنڈ بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی نظر تو نہیں ہو گئی آپ کی؟ دیکھیں بھائی، عیدی وغیرہ ہم نے پولیٹیشین سے کبھی عیدی، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ، ہم نے ان لوگوں سے کبھی عیدی نہیں لی. آپ عیدی لیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رعایت کرنی پڑے گی. محبت والی بات نہیں، وہ اس کو محبت نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا، مطلب یہ ایکوموڈیٹ کر دیا. ہاں، اب جیسے آپ بقرعید پہ یا عید پہ چلے جائیں تو یہ ہوتا ہے یار ہم نے تو وہ آیا تھا، ہم نے 10-20 ہزار روپے اس کو دیے تھے، اس کو خود خیال کرنا چاہیے. تو ہم کبھی عید ملنے ہی نہیں گئے، نہ گورنر ہاؤس میں کبھی عید ملنے گئے، نہ سی ایم ہاؤس میں کبھی عید ملنے گئے. منظر رضوی صاحب جو ہے، میں آپ کی بات کاٹ کے تھوڑا سا تعارف کراؤں کہ یہ اس روایتی جرنلزم کا ایک شاہکار ہیں کہ جو نسیم راجپوت اب ختم ہو. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اب جس قسم کے چائنا کے جرنلسٹ آ رہے ہیں تو منظر رضوی بالکل چائنا کے آ رہے ہیں. ہم تو نہیں مانتے ان کو کہ وہ پیرا ٹروپرز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ بس یوٹیوب سے اور فیس بک کے ذریعے رپورٹ کی. منظر بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت گراس روٹ کے آدمی ہیں. منظر بھائی جسے کہتے ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. مطلب ہر ایک کو کوئی بھی سوال کرتے ہیں وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تیکھا سوال ہے، لیکن وہ بالکل اللہ لگ کی بات ہوتی ہے. اور اب یہ سوال ہونا بند ہو گئے. اللہ کرے کہ ایسے لوگ اور آئیں اور لوگ منظر بھائی کو دیکھ کر سیکھیں. نہیں، اچھا یہ فیلڈ میں جو ہے نا وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن آفس میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے میں نے شروع میں جب ان کا پرومو دیکھا تو میں نے کہا کہ مطلب یہ بہت خڑوس ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوں گے، تھوڑے روڈ ہوں گے. لیکن جب ان سے ویسے ہے تو صحیح، آپ کو دیکھ کے چینج ہو جاتے ہیں. اب کوئی 1-2 سال ایک جیسا نہیں رہ سکتا. جب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگ آواز سے ایسا لگتا ہے نا. میری جو بیٹیاں ہیں نا، ان کی فرینڈس کہتی ہیں تمہارے ابا کی آواز جو ہے نا وہ تو، اور یہ ایسے سوالات کرتے ہیں تو تم لوگ کیسے؟ تو وہ بچیاں بتاتی ہیں نہیں بھائی بڑے فرینڈلی ہیں ہمارے ابا، ہم تو ان کے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں. اچھا، لوگ یقین نہیں کرتے کہ یار اتنی روبدار آواز یہ بڑے بڑے لوگوں، اور یہ گھر میں جو ہے بالکل بچوں کے ساتھ. گھر میں تو آدمی بھاری روب ہوتا ہے. کچھ یہ بھی کہہ لیں بھائی، وہ فطرت تو آپ لوگوں نے دیکھ لی نا. ہم ہر جگہ جو ہے نا، اب انہیں سوچا یہی تھا نا شہزادی نے بھی کہ منظر بھائی پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کیا ہوگا. لیکن تو میں بڑا ڈر رہی تھی جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے اتنے اچھے سے بات کی. اور پھر میں نے ان کا کوئی پیکج پڑھا تھا، اس کی انہوں نے بڑے اچھے سے تعریف کی. تو میں نے کہا کہ مجھے تو خود بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں نے آپ کا پرومو دیکھا، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ اس وقت دوسرے آفس میں تھے تو ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے نئے، تو بڑا اچھا لگا تھا. اچھا منظر صاحب، جیسے آپ باہر بہت بارو پرسنالٹی ہیں اور جتنے تیکھے سوال کرتے ہیں، گھر پہ اتنے ہی تیکھے سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں آپ؟ نہیں، گھر میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ کم رہتا ہے. جو باہر ہی رہتا ہے، باہر ہی رہتا ہے، وہاں زیادہ سوال کرتے. آپ تو سوال نہیں کرتے ہوں گے، جو آپ کے سامنے سوال آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں بھائی، GHQ کا سب کو خیال کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ جو ہے نا حکومت جن کی ہے بس وہی حکومت کریں. ہم تو وہاں آخری نمبر پہ ہیں. ہم سے کہتی بھی ہیں ہماری وائف کہ بھائی، میں کہتا ہوں میرا اس معاملہ سے کوئی تعلق
नहीं है। नहीं, वहाँ तो ईदी देनी पड़ती होगी। वहाँ तो सारी बच्चों की ख्वाहिश, वाइफ की ख्वाहिश, वो सब पूरी करते हैं। जाहिर बात है, एक फैमिली है आपको, आपका फैमिली में जो है ना ऐसा हो कि और लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें। बस ये है कि आप जाहिर जो दुनिया में आया उसको दुनिया से जाना भी जरूरी है। आपने बहुत क्रेडिबल काम किया। तो ये है कि याद कर। अब ये आपकी फैमिली को प्राउड होना चाहिए। ये भी शिकायत कर रही थी अब मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने बिलाल से, मंजर भाई तो बड़े अलग आदमी है। मैंने कहा भाई क्या मैं उठ के सलाम करूं? भैया आप सलाम नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने सलाम किया था और मंजर भाई ने कहा वालेकुम सलाम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मंजर भाई पूछेंगे कि कैसी हैं आप खतीजा, ठीक है? उन्होंने तो मुझे कहा ही नहीं कि आप कैसी हैं, ठीक है? मैं नहीं जानता। हाँ, तो फिर मैंने शिकायत कर दी। अच्छा, शहजादी ने जब हमेशा शहजादी आपकी खैरियत पता करी मैंने। बिल्कुल। तो अब ऐसा हो नहीं सकता कोई सलाम आज आपने मेरी खैरियत का पता की। चलें। ओह माय गॉड, भाभी देख रही होंगी प्रोग्राम। मंजर भाई ये ना करें, मंजर भाई ये ना करें। नहीं, और जितना खुल के यहाँ बोलेगा, जैसे अल्फाज फंसे हुए थे, घर से आ रही। अब हमारा से जरा थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा हम लोग जिस तरीके से सब हम लोग होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, काम कर रहे होते हैं। खास तौर पे जब एकदम से चेंज खबर हो, कोई टॉपिक चेंज हो जाता है, तो क्या एक फीलिंग होती है, डिफरेंट होती है? हाँ, थोड़ी सी शुरू में घबराहट होती है, लेकिन फिर वो कर करके एक हमारा टेम्पो बन जाता है, तो फिर हम आदी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि शेख साहब फौरन पीसीआर पहुंच जाते हैं और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि अब ये करना है, अब इनको लाइन पे लेना है, इस तरह नहीं करना है सर। तो वो एक डर भी लगता है, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो ये क्रेडिट हमारे शेख साहब को जाता है। खास तौर पे आजकल जिस तरीके की खबरें हैं, उसमें खुशी की खबर कम ही मिलती है हमें। बहुत सारी चीज़ों के अंदर या तो जी आप हालात इस तरीके के चल रहे होते हैं, फिर उसको बड़ा आपको इतना सीरियस इशू होता है कि आपको बहुत तरीके के साथ जाना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या लाइंस हैं, उस लाइंस को मेंटेन करते हुए अभी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सहाफत की उस लिहाज से मैं कंपेयर करूं जिस दौर में हम सहाफत कर रहे थे, इनके लिए खासा डिफिकल्ट काम होता है। मैं आपको बताऊं, बहुत जदीद मशीनरी के साथ, जदीद तकाज़ों के साथ, लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है आपसे हो गई हैं। इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो लोग आपको कंपेयर भी ऐसे करते हैं कि जी फला जगह ऐसा हो रहा है, तो आप लोग माशाल्लाह उसमें कूप अप रखना, वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल हमारा मैं भी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जितना भी स्टाफ है, हमारा ने हमारे पास सबसे न्यू जो है वो न्यूज़ एंकर हैं। मतलब इन्होंने अभी तक यहाँ पे सारे जितने भी एंकर्स हैं उनमें से सबसे कम वक्त हुआ है, लेकिन बिल्कुल घुल मिल गई हैं। तो हमारा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये आपका पहला त्यौहार है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का माहौल, हमारे बॉस, हमारे जो रूल्स हैं और जो काम करने का हमारा है अंदाज है, इन सारी चीज़ों में ढलने में कितनी दिक्कत हुई और कहाँ पे दिक्कत हुई, ये बता देना ताकि शेख साहब सुन लें। नहीं, वैसे शहजादी सीधी सी बात है कि जब से मैं आई हूँ मुझे कभी भी एक ऐसा पॉइंट नहीं हुआ कि जहाँ मुझे टफ टाइम मिला हो या मैंने कोई प्रेशर फील किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जितने भी हमारे कंट्रोलर साहब हैं, हमारे चेयरमैन हैं, इवन मेरे सीनियर जैसे आप हो गई, सना हो गई, अकबर हो गए, मेहदी हो गई, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। और कहीं मुझे कोई भी इशू हुआ, मैंने आपसे बात की, सना से बात की, मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई सीनियर है या फिर कोई वो, इस तरह से कभी भी फील नहीं हुआ। और ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और ईद में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा सा ना वो हो रही थी कि ईद है, घर पे नहीं होंगी, क्योंकि तो फिर लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, फर्स्ट डे भी मैं आई थी, लेकिन फील ही नहीं हुआ। ये भी मेरी एक फैमिली सी बन गई है, मेरी सिस्टर की तरह आप लोग और बाकी सब मेरे भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारी ज़िंदगी ना, जैसे भी बात की हमारा ने, ईद पे अक्सर भाई मैं तो मुझे याद है मैं चैनल में काम करता था, उस वक्त मैं रिपोर्टर था, लेकिन मेरी ड्यूटी हो जाया करती थी ईद वाले दिन। हमने यानी कि ईद के 3 में से 2 दिन तो काम किए लाजमी, बिल्कुल। और ये हाँ, ये हम लोगों की ईद जो है वो मुख्तलिफ होती है, हमें जाना पड़ता है हमारे काम। जैसे अभी हमें जाना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक पर। बिल्कुल नाज़रीन देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरी पुरानी जो है वो को होस्ट आ गई हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी को न्यूज़ एंकर भी हैं, को साथी भी हैं। और इस वक्त जो हमारा पैनल है वो सारा जो है ना वो प्रोग्रामिंग पैनल हमने बिठाया हुआ है। खतीजा राठौर हैं, कौसर हैं, सरवत हैं और हमारे सबके हर दिल अजीज़ जो हैं पम्मू भाई भी हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ना कुछ गेमिंग वेमिंग कर लें कुछ, ठीक है सर जी? ठीक है, अगर पम्मू भाई से स्टार्ट करते हैं ना, ज़रा इनकी बेगम देखती होंगी।
बेगम के अलावा अगर आपको डिनर पे जाना पड़े किसके साथ जाएंगे? किसी भी एक्ट्रेस किसी भी पर्सनालिटी, खुशी देखें आप, खुशी देखें। किसी भी अब वो पर्सनालिटी, चाहे आपके पॉलिटिशियन हो या अलावा कोई भी कोई एक्ट्रेस। एंकर या आप में से किसी के साथ जाना होगा? नहीं नहीं एंकर्स नहीं। ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे कर लें। खतीजा, देखिए ना, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा आप में से कोई भी चला चले, कोई भी चला ना? चले। या सबको ले जाए। सियासी अच्छा, जवाब, सियासी। कोई भी चला जाए। हाँ। कोई भी चला जाए, लेकिन खतीजा जो है ना, हाँ। वो आजकल क्लोज हुई हैं, ओके, उनसे बातचीत very ज्यादा है। अच्छा जी, सरवत, अगर आपको डिनर पे जाना पड़े और अपनी फेवरेट पर्सनालिटी, वो कोई भी हो सकती है, दुनिया भर से कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो आप किसके साथ डिनर पे जाना चाहेंगे? वैसे तो फेवरेट पर्सनालिटी मेरे वालिद साहब ही हैं, माशाल्लाह, जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है। वालदा के साथ जाना चाहिए। गुड हो गया। कौसर, अच्छा हम इनको प्यार से ना कौसर कहते हैं। कौसर, आप कौसर बताइए, बहुत मजाक भी करती हैं, बहुत ऑफ funny स्क्रीन है, बहुत बहुत फनी funny है। किसके साथ जाएंगी? ये कैसा जवाब है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन था पीछे? अच्छा, मैं अपनी माँ से, हम 7 भाई बहन हैं, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज हूँ। तो कहीं भी ऐसा जाना होता है, कोई भी ख़ास इवेंट होता है, कुछ भी होता है, मेरी वालिदा इस वक्त बहुत बीमार है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले कभी ऐसा कि जाना हो किसी ख़ास जगह पे डिनर के लिए, मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहूँगी। खतीजा जी, डिनर पे। अच्छा, मियाँ का नाम ना लीजिएगा, पम्मू भाई का नहीं लेना। किसी किसी भाई पर्सनालिटी। का भी नाम नहीं यार लेना। यहाँ तो आपने बता दिया कि मैं मैरिड हूँ, अक्सर लोगों को पता भी नहीं है कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, लेकिन चलिए। मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा देखिए, फैमिली के साथ तो मैं यूजुअली जाती हूँ, अपनी अम्मी के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ डिनर पे जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो आप न्यूज़ में होते हैं, हाँ। आप न्यूज़ ख़त्म करते हैं तो फिर मैं प्रोग्राम करती हूँ, तो इन लोगों के साथ मुझे वक्त नहीं मिल पाता, इंक्लूडिंग पम्मू भाई। तो मैं आप सबके साथ जो है एक group वो dinner पे जाएंगे। बिल्कुल, dinner मैं करना यहाँ चाहूँगी। पे हाँ। अपने नाज़रीन को कुछ बताना चाहती हूँ। नाज़रीन, ये हमारे पास, मैंने अभी बताया था कि सबसे लास्ट जो ज्वाइनिंग है हमारे पास, वो अम्मारा की है, और अम्मारा ने बिना किसी के कहे ही ना, जिस दिन ये ऑनर हुई थी, जिस दिन इनको ज्वाइनिंग लेटर Yes, मिला था, हाँ। ये उस दिन इन्होंने ना सबको डिनर करवा दिया था। Dinner। मैं तो और नहीं शामिल माशाल्लाह थी, ये वो पर्सनैलिटी हैं। मैं तो शामिल नहीं अभी थी उस यहाँ dinner पर में। ज्वाइनिंग, आई थी। एक हाँ, मिनट, आप लोग नहीं एक थे। मिनट, let me complete। बिजी लोग हैं आप लोग नहीं, काफी। इन्होंने क्या किया, ये इनकी मुझ में डाल रही है। ज्वाइनिंग भी मुझे नहीं मुझ थी, में डाल। तो इन्होंने कहा शहजादी मुझे बस इस चैनल में आने दो, सबसे पहले तुम्हारी ट्रीट। मैंने आपको कहा था, आपके रिलेटिव की शादी थी, फिर आपके इनके शोज relative होने की लग शादी। गए, फिर ये छुट्टियों पर चली गई, ये फिर आ गई, फिर ईद हो गई, फिर 4 बार प्लान बना, इस बार यहाँ जाएंगे, इस बार यहाँ जाएंगे। अच्छा, चारों अब बार प्रोग्राम लगा। खत्म होने के बाद जो है वो मैं और शहजादी जा रहे हैं। और मैं बता रही हूँ आपको Dinner पे। अभी से ये नहीं, हम डिनर पे जाएंगे। हम social अच्छा media पे शहजादी, pictures सबसे भी आपने हाँ। पूछ लिया कि कौन किसके साथ डिनर पे जाएगा, आप किसके साथ जाएंगी, आप ही बताएं। ओके, वैसे मैं चाहती थी, अगर आप लोग ना 3-4 साल पहले ये सवाल करते, बल्कि एक ट्रांसमिशन में हुआ भी था, तो उस वक्त जवाब कुछ और था, लेकिन आज चूंकि मैं जवाब कुछ और दूंगी। इस वक्त जो मेरी हर दिल अजीज हैं, मैं इस वक्त न्यूज़ एंकर तो नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि मुझे मरियम नवाज बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मुझे डिनर क्या चाय के कप के लिए भी जाना पड़े, तो मैं कहूंगी कि मैं मरीम नवाज से मिलना चाहूंगी। मुझे बहुत अजीज है। और सिर्फ पानी भी पिलाएंगे तो भी चली जाएंगे। अरे या पानी सिर्फ ना भी पापा पिलाएं, तो भी बस चले मिलने- सिर्फ हेलो हाय में भी चले मिलने तो भी जाएंगे। चले जाऊंगी। थोड़ा सा इसलिए कि ना असल हम लोग ना थोड़े मसरूफ होते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप कॉल नहीं उठा पाते, तो इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे बड़े मामू जब भी कॉल करते हैं, इत्तेफाकन में उनकी कॉल कभी उठा नहीं पाती, या तो स्टूडियो में होते हैं या फिर घर पे कुछ बिजी होते हैं, तो वो कहते हैं मरियम नवाज फोन नहीं चुकती भाई। उसके वो मुझे मरियम नवाज कह के बुलाते हैं। आप भी उतनी ही बिजी होती हैं वैसे। नहीं, उतनी तो नहीं होती, उन पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ा सा ये एक है, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। अगर ये मेरा पैगाम किसी तरीके से उन तक पहुंच जाए तो मैं पहुंचाएंगे आप आपको लोग। मरियम। इन्होंने बड़े खुले तरीके से पैगाम दे दिया है, एक live और show मैं में। समझती हूँ अगर मरियम साहब अगर आप देख रही है तो इनको बुला के प्लीज चाय बुलाएं। पिला हमें भी ले जाना साथ में। हाँ, हमें हम सब जाएंगे, दें। सबको इनको जाना जाने देंगे चाहिए। भी नहीं अकेले। चले नाज़रीन, मैं तो ये दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करें, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए पार्ट न्यूज़।